Hello and welcome to another episode of Candid Sundays. This is a series that I've started on YouTube where I do unfiltered conversations with you every Sunday. I do not prepare any script for these kind of videos and it's as raw as it can get. And today I've decided that I want to talk about letting go. By letting go, we mean letting go of people, of situations, of circumstances, letting go of things that basically do not serve us right. Now most of us since our childhood हमारी conditioning ऐसी होती है कि हमें लगता है कि हमें दूसरों के हिसाब से चलना चाहिए. We should do things from others' perspective. We shouldn't say or do things that will hurt others or that will, create a bad impression on others. Basically हम दूसरों को बुरा नहीं feel कराना चाहते. At least people like me, I feel that I'm a very emotional and sensitive person and I think on these lines. So that is why I'm assuming that my audience is also like that. But I know that all of you are not like that. But those who can relate with me will understand what I'm talking about. Basically, for people like us, it's difficult to let go. Because we get too attached to things, to people, to situations and हमारे लिए let go करना बहुत ज़्यादा difficult हो जाता है. जब हम दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना कहीं हम अपने mental peace को neglect करते हैं. हम दूसरों को अपने से ऊपर रखना start कर देते हैं. And because of that, we do not think about our mental peace. I'm also a life and relationship coach and on my Instagram, a lot of you ask me about detachment, about letting go and that is why I thought let's talk about it in today's video. More than half of my life so far, I have kept others' emotions over mine. Like मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं अगर ऐसा बोलूँगी तो उसको बुरा लग जाएगा. मैं अगर ऐसा करूँगी तो उसको बुरा लग जाएगा. तो इसीलिए I should, do this or I should say this. And trust me, I have seen the repercussions. And that is why today I preach it very openly that you should always prioritize your mental peace, your emotional well-being. Because हो सकता है कि आपको लाइफ में कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो कि इस चीज़ को रिस्पेक्ट करे कि आप उनके इमोशंस को अपने इमोशन के ऊपर रखते हो. बट वो इंसान को छोड़ के बाकी जो लोगों से आप मिलोगे ना अपनी लाइफ में उसमें से बहुत ही कम लोग होंगे जो इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे. तो मैंने ये चीज़ सीख ली है कि कभी कभी यू नीड टू बी सेल्फिश. एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन इट कम्स टू योर मेंटल पीस you need to be selfish. You need to realize that your mental peace is the most important thing and should be the most important thing for you. तो अगर तुम भी ऐसे इंसान हो जो कि दूसरों के इमोशंस को अपने इमोशंस के ऊपर रखता है हमेशा, लाइक दूसरों के हिसाब से चीज़ें करता है, then let me tell you, you are going to regret it later. ऐसा करना बस उस इंसान के लिए सही है जो कि आपके लिए बना है, जो कि आपको अच्छे से समझता है. बट अगर आप हर इंसान के लिए ऐसा करने लगोगे ना, then people will start taking you for granted and people will, I don't know if I should say this or not, but people will not respect you that much because तुम्हारा तो कुछ वजूद ही नहीं है. तुम दूसरों के हिसाब से चलते हो, तुम अपने हिसाब से चीज़ें नहीं करते हो. दूसरों को बुरा ना लग जाए तो तुम वही करोगे जो सामने वाला चाहता है, राइट? तो पीपल विल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड बिकॉज लोगों को ऐसा लगेगा दैट यू डोंट हैव अ स्टैंड ऑफ योर ओन. ये बात बस तुम्हें पता है कि ये स्टैंड की बात नहीं है. तुम दूसरों को अपने से ऊपर इसीलिए रखते हो क्योंकि तुम केयर करते हो. यू आर अ सेंसिटिव इमोशनल पर्सन एंड दैट इज़ वाई यू कीप अदर्स अबव यू. That does not mean that you don't have a stand. It's just that you value relationships more than your stand or your ego, or you do not have an ego when it comes to people you care about. Like जिस इंसान के तुम केयर करते हो उसके केस में तुम ये सब नहीं सोचते हो एंड तुम उसके हिसाब से चीज़ें करने के लिए रेडी हो जाते हो. ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है बट सामने वाले को ये पॉइंट ऑफ व्यू अक्सर नहीं समझ आता. सो दैट इज़ द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इन दिस वीडियो एंड दैट इज़ 99% लोगों के लिए तुमको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा. यू हैव टू स्टॉप लेटिंग अदर्स ओवरराइड यू ऑल द टाइम बिकॉज द वर्ल्ड वर्क्स लाइक दैट. आई नो यू आर गुड फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू. तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो, तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें एक अच्छे इंसान की तरह, एक सेंसिटिव इमोशनल केयरिंग इंसान की तरह कर रहे हो. बट सामने वाले को नहीं समझ आता. आज की दुनिया ऐसी ही है. पीपल जस्ट पीपल कम इन योर लाइफ, दे विल take your healing support, they will vent out in front of you because you are the listener, because you give good advices. So लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे बातें करेंगे. जब तक वो wounded हैं तब तक वो तुमसे healing लेंगे. They will heal themselves and then you never know, they might even leave.
सो दैट इज़ वाई यू हैव टू बी केयरफुल कि तुम अपना इमोशनल सपोर्ट किसको देते हो, एंड अपना ये जो तुम्हारा एक्सट्रीमली केयरिंग नर्चरिंग नेचर है, प्यारा सा नेचर है, वो किसको देते हो. सबको मत दिया करो. इट्स नॉट गुड फॉर यू. You have to be very, very careful in this regard. So we were talking about letting go. So let me connect it back to letting go. जब तुम इस चीज़ को समझ जाओगे ना कि तुम्हारी मेंटल पीस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस दुनिया में तुम्हारे लिए, एंड ये शायद तुम्हें थोड़े धक्के खाने के बाद पता चले, बट मैं तुमको बता रही हूँ, जब तुम्हें रियलाइज़ हो जाएगा ना कि तुम्हें तुम्हारे मेंटल पीस को प्रायोरिटी बनाना है, देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू लेट गो. Then it'll be easy for you to not bother about people who do not give you that love and care that you want from them. तो जो भी चीज़ तुम्हारी मेंटल पीस को हैम्पर कर रही है, अगर वो कोई इंसान है, कोई चीज़ है, कोई एक्टिविटी है. आई ऑफन डू दिस दैट ऑन माई इंस्टाग्राम. आई फॉलो वेरी लेस पीपल, बट उनमें से अगर मैं किसी के अपडेट्स देखती हूँ ना व्हाइल स्क्रोलिंग, एंड आई सी दैट कोई भी अकाउंट अगर मुझे थोड़ी सी भी एंग्जाइटी देता है या बहुत ज़्यादा एस्पिरेशनल लगता है या ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, मे बी दैट थिंग इज़ कमिंग फ्रॉम माई प्रॉब्लम, मे बी इज़ कमिंग फ्रॉम माई इनसिक्योरिटी. मुझे पता है, एक्सेप्ट इट, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं अनफॉलो कर देती हूँ. एंड मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं उस लेवल पे पहुँच जाऊँगी, जब मैं उतनी स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगी, जब मैं उतनी सिक्योर हो जाऊँगी अपनी चीज़ों को लेके, देन आई विल फॉलो देम बैक. इट्स नॉट दैट आई डोंट लाइक देयर अकाउंट, इट्स जस्ट दैट it's not good for my mental peace right now. So that is the thing that you have to do with everything in your life. The people, the things, the situations, जो भी चीज़ों में आपको जाने से आपको यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना, stop doing it. Let it go. Right? So on that note, I will end this one here. I hope you liked it. And if you did, please make sure to like on this video, share it with your friends, and subscribe to my channel if you haven't done so yet. And I will see you again very soon in my next one. Till then, bye-bye. Take care.